children, how are you? I hope you all are well and welcome back in our next session or in our today's class. And today we are going to learn our next lesson, and the lesson name is The Pied Piper of Hamelin. What is the name of our lesson, or what is the title of our lesson? The title is The Pied Piper of Hamelin. Pied Piper means बांसुरी वाला. Pied, P-I-E-D. Pied means बहुरंगी जिसे हम कहते हैं, and Piper means बांसुरी वाला of Hamelin. Hamelin, it is a city from Germany, isn't it? Hamelin नामक शहर है जर्मन देश से. Understood? Then see, are you looking this picture, students? In this picture, a stranger, it means ajnabi जिसे हम कहते हैं, he has a piper and he is a pied. वह एक बहुरंगी बांसुरी वाला है जिसे देखकर हमें वह अजनबी सा लगता है, and that person who जो कि बांसुरी बजा रहा है वह अपनी जादुई बांसुरी से एक विशिष्ट प्रकार की धुन से चूहों को, बच्चों को या फिर जिसे वह चाहता है उन सभी लोगों को उसके पीछे बुलाकर जहाँ चाहे वहीं लेकर जा सकता है, एंड इसीलिए उसे बहुरंगी कहा गया है. ओके, सो सी दिस पिक्चर of the person and rats. Okay, then what is the story about this rat and the person with this related picture? We will see next. Then first of all we see here the title of the lesson, The Pied Piper of Hamelin, and the lesson's author is Robert Browning. Who is the author? Robert Browning. Okay. In our class, in the subject English, the lesson is for us, for the study. And now we will see the image of Robert Browning, and this type such here. He is a Robert Browning who wrote this lesson or fairy tale. It means actually the Pied Piper is a fairy tale. Fairy tale means परी कथा जिसे हम कहते हैं. Okay. Then see. Now we will just see a image of Hamelin city from Germany. Okay, such type. In a Germany country, Hamelin is located, and in that Hamelin city, so much rats get flocked. How is that? See now. Fairy tale means pari katha. Students, the Pied Piper of Hamelin, it is a fairy tale. यह एक परी कथा है, and the Pied Piper of Hamelin, it is a child story, narrative poem of 300 lines by Robert Browning. Robert Browning के द्वारा लिखी गई यह जो बच्चों की स्टोरी है वह एक पोएम के रूप में ही है, and it is a fairy tale. Pied Piper is also known as the Pied Piper or the rat catcher of Hamelin. Okay.
रबर पाइड पाइपर यह जो है उस पाइड पाइपर को पैन पाइपर या फिर रैट कैचर भी कहा जाता है, बट स्पेशली फॉर द Hamelin city. Okay. See again. Mostly it follows the classic very fairy tale of the Pied Piper, keeping to the same two morals. It means अधिकतर मात्रा में यह जो फेरी टेल है वह किसको फॉलो करने को कहती है, तो यह क्लासिक वेरी फेरी टेल है जो पाइड पाइपर से रिलेटेड जो भी दो प्रॉमिस इस स्टोरी में किए गए हैं उन दो प्रॉमिसेस को फॉलो हमें करना है, जैसे कि सेम टू मोरल्स। अर्थात यह एक थोड़ा मोरल लेसन भी है, नैतिक लेसन भी हम इसे कह सकते हैं। अगर हम किसी से प्रॉमिस करते हैं तो उसे निभाना ही होगा, ओके ना। अगर नहीं निभाते हैं तो उसके रिएक्ट में, उसके अपोज में क्या रिएक्शन होती है, यही इस कहानी में आज हम देखने वाले हैं। द फर्स्ट मोरल इज इफ वी हैव प्रॉमिस देन लेट्स कीप आवर प्रॉमिस। अगर हम किसी से प्रॉमिस करते हैं तो हमें उस प्रॉमिस को निभाना ही होगा, ओके। एंड द सेकेंड थिंग इज simply put a man ought to keep his word. First, the use of the word corporation makes the poem more updated than the classic tale fairy. See here, पहली बात है अगर हम किसी को प्रॉमिस करते हैं तो वो निभाना ही होगा। एंड हम अगर किसी को दो शब्दों के में अगर कुछ बोलते भी है, हमने अगर किसी को शब्द दिया है, कुछ प्रॉमिस किया है, तो उसे हमें बखूबी से हमने जो भी बोला था वह पूरी तरह से, जो भी डिमांड की थी वह पूरी करनी ही पड़ेगी, ओके। सी हियर नाउ, हैव यू एवर मेड अ प्रॉमिस टू समवन? क्या कभी आपने किसी से प्रॉमिस किया है? याद कीजिएगा, यस। अगर प्रॉमिस किया है तो क्या आपने अपने उस प्रॉमिस को निभाया है? दूसरा क्वेश्चन है ना। और व्हाट इज द इम्पोर्टेंट टू स्टिक टू अ प्रॉमिस। और अगर अपने प्रॉमिस से नहीं बने रहते हैं, प्रॉमिस तोड़ देते हैं, तो क्या हो जाता है? एंड हाउ वुड यू फील इफ समवन ब्रेक्स अ प्रॉमिस मेड टू यू? अगर यह सोचो कि अगर आपसे किसी ने प्रॉमिस किया हो और वह तोड़ता हो तो आप कैसे फील करते हैं, ओके। So all these things we have to learn in this fairy tale by the Pied Piper of Hamelin, isn't it? Now we will see the hard words from this chapter, and the hard words are, first one is contentedly. Just a minute. contentedly. Contentedly, it means delighted, or we may call it satisfied with things as they are. It means जो भी चीज़ें अपने साथ जैसे भी है उसी के साथ हम संतोषपूर्वक रह सकते हैं। The second word is that nod. GNAWED, nod. It means bit or nibbled, या फिर हम उसे कह सकते हैं to bite या फिर chew on. It means दांत से काटना, दांतों से कुरेदना, कुतरना, ठीक है। And the next word is swarmed. SWARMED. Swarmed means moved in a large numbers. Moved in a large numbers means, स्पेलिंग मिस्टेक हुई है यहाँ पे swarmed की भी। You may see in your textbook please for the correct spelling. Hard words.
SWARMED, swarmed means moved in a large place. It means large numbers, sorry. फ्लॉक या फिर क्राउड, अधिक मात्रा में एक जगह कलेक्ट हो जाना, जमा हो जाना, जिसे हम झुंड या समूह कहते हैं. ओके, तो यहाँ पर किस बात का समूह है, झुंड है तो रैट की. फ्लोरिन, FLORIN, फ्लोरिन मीन्स इट इज अ गोल्ड कॉइन ऑफ जर्मनी. सोने के सिक्के जो जर्मनी में स्थित है. एंड द नेक्स्ट वर्ड इज पाइड, PIED. पाइड मीन्स हैविंग टू और मोर डिफरेंट कलर्स. इट मीन्स बहुरंगी, जिसे हम कहते हैं. स्कैम्पर्ड, SCAMPERED. स्कैम्पर्ड मीन्स रन विथ क्विक लाइट स्टेप्स. रन विथ क्विक कॉमा लाइट स्टेप्स मीन्स तेज से दौड़ना. तेजी से दौड़ना. वफ्टेड, WAFTED. wafted means passed gently through the air. passed gently through the air. यहाँ का भी शायद कटआउट हो गया है इंग्लिश मीनिंग. passed gently through the air. For this meaning you also take the help of textbook. It means कोई धुन बजाना या गाना गूंज लगाना. स्ट्रेंजर, STRANGER. स्ट्रेंजर मीन्स अननोन पर्सन, अजनबी, जिसे हम कहते हैं हिंदी में. श्रगड़, SHRUGGED. श्रगड़ मीन्स ड्रॉ, खींचना, उचकना, जिसे हम कहते हैं. लिंगर्ड, LINGERED. लिंगर्ड मीन्स टिका रहना, लगे रहना. मार्च्ड, MARCHED. मार्च्ड मीन्स टेक अवे, दूर लेके जाना. इस तरह से हमने कुछ हार्डवर्ड्स आज अपने इस चैप्टर के देखे हैं. एंड नाउ वी विल स्टार्ट द स्टोरी, और लेट्स गेट स्टार्टेड आवर लेसन. यू मे सी इन योर टेक्स्ट बुक, अर्थात आपको टेक्स्ट बुक यूज करनी ही है. then you can see in your textbook, please, for this in compare this video, you may see it clearly. And let's get started our story. The Pied Piper of Hamelin. See, चलो देखते हैं कि ऑथर रॉबर्ट के द्वारा लिखी गई इस फेरी टेल में क्या होता है. Once upon a time, on the banks of a great river in the north of Germany, lie a town called Hamelin. It means एक ही समय, एक एक काली, जिसे हम कहते हैं. कई साल पहले, on the banks of great river, okay, नदी किनारे, in the north of Germany, जर्मनी के नॉर्थ एरिया में एक शहर था. एंड उसका नाम क्या था उस शहर का? हैमलिन. The citizens of Hamelin were honest people who lived contentedly in their grey stone houses. Hamelin सिटी के जो नागरिक थे, जो भी पर्सन्स थे, सिटीजन्स थे, वह लोग बहुत ही संतोषपूर्वक अपना जीवन बिताते थे एंड बिता रहे थे. वहाँ के घरों का दिखावा कैसा था, वहाँ के घर कैसे थे? तो ग्रे स्टोन हाउसेस. इट मीन्स जर्मनी में हैमलिन नामक सिटी में सिटीजन्स के घर किस प्रकार के थे? वह तो ग्रेनाइट स्टोन के घर थे. जैसे कि हमने अभी इधर देखा कि ग्रेनाइट स्टोन के हाउसेस हैमलिन सिटीज में देखा हमने. सी हियर, नो सॉरी, हैमलिन इन जर्मनी. उफ, पिक्चर लेने का रह गया. ओके, तो ग्रेनाइट स्टोन के होम्स वहाँ के लोगों के
है. Then one day a black sea of rats swarmed over the whole town. एक काला समुद्र छा गया, अर्थात ओवर द होल टाउन. अचानक से क्या हो गया कि पूरे सिटी में रैट ही रैट आने लगे, दिखाई देने लगे. फर्स्ट दे अटैक द बार्न्स एंड स्टोर हाउसेस. तो सबसे पहले उनका अटैक कहाँ रहा? बार्न्स पर. बार्न्स मीन्स BARNS. बार्न्स मीन्स यूजुअली लार्ज बिल्डिंग फॉर द स्टोरेज ऑफ फार्म प्रोडक्ट. गोदाम जिसे हम कहते हैं, वैसे प्लेसेस पे पहला अटैक रहा. उसके बाद स्टोर हाउसेस पे दिखने लगे. देन दे gnawed द वुड एंड क्लॉथ. उसके बाद वह क्या करने लगे? जिधर भी देखे चूहे ही चूहे दिखने लगे. उस पूरे सिटी हामलिन में अचानक से एंटर किए, तो बार्न्स में, स्टोर हाउसेस में, एंड वहाँ पे जाके तो क्या करते हैं उंदीर लोग, चूहे लोग, आपको पता है, जैसे कि वुड एंड क्लोथ्स है, सभी को कुतरने लगे. द टेरिफाइड सिटीजन्स फ्लॉक्ड टू प्लीड विद द टाउन काउंसिलर्स टू गेट रीड ऑफ द रैट्स. इतना परेशान करने लगे चूहे कि सभी तरफ फैल गए पूरे सिटी में, घरों में, स्कूलों में, मार्केट में, जिधर देखे उधर चूहे ही चूहे थे. एंड चूहों की इस परेशानी की वजह से लोगों को खाना नसीब नहीं हो रहा था. कि ऐसे डर लग रहा था उन्हें कि बाबा जो भी हम चीज़ें हम खा रहे हैं, क्या वही चीज़ें सब हमसे पहले चूहे ने खा ली हो. तो इस प्रकार का कई डर उनके मन में बैठ गया था. एंड इसी डर की वजह से वह लोग सिटीजन्स क्या करते हैं, टाउन काउंसिलर के पास चले जाते हैं टू गेट रीड ऑफ द रैट्स. तो इन चूहों से छुटकारा पाने के लिए. सो द काउंसिल मेट इन द मेयर्स रूम ट्राइंग टू थिंक ऑफ अ प्लान. तो काउंसिल कहाँ पर मिलते हैं? तो मेयर्स रूम में. एंड मेयर्स रूम में सभी लोग बैठकर एक कुछ प्लान बनाने के लिए बैठते हैं, सोचते रहते हैं, इस पर कुछ उपाय निकाले. While they were thinking of different ways to get rid of the rats, there was a knock at the door. जैसे भी वह मीटिंग में बैठे थे कि कुछ प्लान सोच रहे थे कि बाबा इन चूहों को कैसे भगाए, जगह से निकाले, हामलिन सिटी से, जो कि लोगों को बहुत परेशान कर रहे हैं. लोगों का जीना हराम कर रखा है इन चूहों ने. तो इन चूहों को अगर निकालना है तो क्या करे? ये तो बड़ी परेशानी थी, छोटी नहीं थी पीपल के लिए, लोगों के लिए. तो वह मीटिंग में बैठ के प्लान कर रहे थे कि अचानक से उस मेयर काउंसिल की डोर पे नॉक सुनाई दी, आवाज. एंड हु कैन दैट बी? द सिटी फादर्स वंडर्ड. तो सिटी फादर जो थे, शहर पिता जिसे हम कहते हैं, मेयर, उन्होंने आश्चर्य से क्वेश्चन किया, हु कैन दैट बी? कौन हो सकता है वहां पे? कौन होगा वह जो कि अभी डोर पे नॉक कर रहा है? दे ओपन द डोर एंड देयर स्टूड अ टॉल थिन मैन. तुरंत जब डोर ओपन किया गया तो देखा तो वहां पर एक टॉल थिन मैन था. कौन था? एक ऊंचा दुबला पतला सा मनुष्य. He was dressed in brightly colored clothes with a long feather in his hat and waving a gold pipe at them. तो वह कैसा था मैन? He was dressed in brightly colored. तो उसका ड्रेस कैसा था? बहुत ही कलरफुल, ब्राइट कलर वाला ड्रेस था. With a long feather in his hat. It means उसके सर पर एक हैट थी, टोपी जिसे हम कहते हैं, पगड़ी. एंड उस हैट में एक लॉन्ग फिदर भी था, पीस भी था. एंड वेविंग अ गोल्ड पाइप एट देम. एंड इन लोगों की तरह वह सुनहरा जो पाइप था, उसका बुना हुआ गोल्ड पाइप उसके पास एक था. इस प्रकार से हाथ में गोल्डन पाइप लेके, फिर हैट पे फिदर लगा के, कलरफुल ड्रेस वाला एक अजनबी स्ट्रेंजर उस मीटिंग में आ पहुंचा. एंड व्हाट ही सेड, सी हियर, आई कैन फ्री this town of the rats, the stranger announced, for 1,000 florins. एंड उसने तुरंत कह दिया अंदर आने के बाद कि आई कैन फ्री दिस टाउन ऑफ द रैट्स. यह जो शहर है अपना हामलिन, तो इस हामलिन को मैं
रैट से फ्री करता हूँ, रैट से मुक्तता दिला सकता हूँ, रैट से छुटकारा दे सकता हूँ आपको, बट फॉर 1000 फ्लोरिन्स। कितने रुपए में? फॉर 1000 फ्लोरिन्स मीन्स 1000 सोने के सिक्कों में। यह उसका मुआवजा था जो कि उसने डिमांड की थी रैट को भगाने के लिए, रैट से छुटकारा पाने के लिए। तो गैस उसे कैसे पता होगा कि हैम्लिन सिटी में चूहे ही है एंड हैम्लिन सिटी इस चूहों की परेशानी से गुजर रहा है? तो पूरे जर्मनी में यह बात फैल चुकी थी, यह न्यूज़ फैल चुकी थी कि बाबा हैम्लिन नामक शहर में बहुत से चूहे घुस आए हैं एंड उन्होंने अपना आतंक मचा दिया है, जैसे कि इस हैम्लिन शहर में पूरा फैलाव हो चुका है चूहों का। एंड इसी न्यूज़ को सुनकर वह स्ट्रेंजर या दैट टिल थिन मैन comes to the council of the mayor in the Hamlin city. Okay, and इसी के आधार पर उसने यह बात कह दी कि मैं पूरे सिटी को आज़ाद कर सकता हूँ, बट you should give me 1000 फ्लोरिन्स। ओके, तो तुम्हें क्या देना होगा? मुझे 1000 फ्लोरिन देना होगा उसके बदले में। 1000 florins? See in our next page. 1000 florins, exclaimed the mayor. मेयर ने आश्चर्य से पूछा, 1000 florins? We will give you 50,000 if you succeed. तो मेयर को क्या लगता है कि क्या यह पॉसिबल है? एंड इसके लिए उसने पहले कह दिया कि 1000 फ्लोरिन, वी विल गिव यू 50,000 इफ़ यू सक्सीड। अगर तुम इस बात को करने में सफल करने में सक्सीड होते हो तो हम तुम्हें 50,000 मीन्स 50,000 फ्लोरिन दे देंगे। ऐसा कौन कहता है? मेयर कहता है। द स्ट्रेंजर सेड दैट द नेक्स्ट मॉर्निंग there won't be a rat left in Hamlin. तो यह सुनने के बाद भी स्ट्रेंजर क्या कहता है? तो ठीक है, then it's okay, done. And the next morning, तो अगली सुबह अपने इस हैम्लिन सिटी में एक भी चूहा पीछे नहीं रह जाएगा। ओके, तो सभी चूहों को हटाने का काम मेरा। इस बात से, इस प्रकार से वह अपना प्रॉमिस तय करते हैं, मेयर एंड स्ट्रेंजर, दैट अजनबी मैन। एंड इस प्रकार से चूहों को भगाने के लिए, हैम्लिन सिटी को परेशानी से मुक्तता दिलाने के लिए यह प्रॉमिस दोनों की तरफ से किए जाता है एंड हो जाता है। See here students, so I think we should take a break today here, and the remaining part of this lesson or moral lesson and of this fairy tale we will see in the next session. Okay, till you should read this chapter or this story full and come again in our class further tomorrow. Okay, so till we have to take a break, and thank you. Sorry. See here what happened again. The people of Hamlin woke up to the sound of the pipe. When they looked out of their windows, they saw the Pied Piper slowly. And जिस प्रकार से प्रॉमिस किया था पाइड पाइपर ने, उस प्रकार से अगली मॉर्निंग सुबह हो गई तो पीपल
पीपल हैमलिन के सिटी में उस पाइड पाइपर की आवाज़ से ही जाग गए दूसरी मॉर्निंग में। ओके, तो अपने वह विंडोज से देख रहे थे तो क्या हो रहा था रास्ते में कि द पाइड पाइपर स्लोली मेकिंग हिज वे थ्रू द हाउसेस। वह पाइड पाइपर स्लोली अपने रास्ते से चल रहा था, बट उसके पीछे पीछे चूहे भी निकल आ रहे थे, अपना रास्ता स्लोली बना रहे थे। एंड बिहाइंड हिम फ्लॉक्ड द रैट्स, उसी के पीछे रैट्स का फ्लॉक चला जा रहा था। आउट दे स्कैम्पर्ड फ्रॉम डोर्स विंडोज एंड गटर्स, तो चूहे कहाँ कहाँ से निकल रहे थे देखो, डोर से, हर एक दरवाजे से चूहे बाहर निकल रहे थे, खिड़की से, गटर से, नाले से, सभी तरफ से चूहे पाइड पाइपर के पीछे पीछे लाइन लगा के चले जा रहे थे। ऑफ एवरी साइज ऑल आफ्टर द पाइपर, सभी प्रकार के चूहे, बड़े छोटे, सभी पाइड पाइपर के पीछे चले जा रहे थे। एंड ही हैज प्लेड द स्ट्रेंजर मार्च्ड डाउन टू द रिवर एंड स्ट्रेट इनटू द वाटर। एंड वह ऐसे करते करते कहाँ तक चला गया, पूरा नदी तक। एंड नदी में जाके पूरे चूहे को छोड़ दिया, जैसे कि वह खुद पहले अपन पानी में उतर जाता है पूरी तरह से, एंड उसी के पीछे पीछे सभी चूहे पानी में, रिवर में गिर पड़ते हैं। अप टू हिज मिडल बिहाइंड हिम स्वार्म्ड द रैट्स एंड एवरीवन वाज ड्राउन्ड एंड स्वेप्ट अवे बाय द करंट। एवरीवन वाज ड्राउन्ड, सब चूहे क्या हो गए, डूब गए। एंड स्वेप्ट अवे बाय द करंट, एंड जो भी फिलहाल जैसे कि चल रहे थे वैसे वह सभी स्वेप्ट हो गए हैं, पानी में पूरे के पूरे डूब गए हैं। जो भी सभी चूहे थे वही बह गए, डूबकर बह गए। बाय द टाइम द सन वॉज हाई इन द स्काई देयर वॉज नॉट अ सिंगल रैट इन द टाउन। जैसे भी सन ऊपर चला गया, इट मीन्स 10-12 o'clock बजते हैं, तो एक भी चूहा उस सिटी में नहीं रहा था। देयर वॉज इवन ग्रेटर डिलाइट एट द टाउन हॉल अंटिल द पाइपर ट्राइड टू क्लेम हिज पेमेंट। एंड चूहे चले जाने की इस खुशी में सभी तरफ खुशी छाई हुई थी, पूरे सिटी में एंड टाउन हॉल में भी। कब तक, जब तक वह पाइड पाइपर अपनी डिमांड नहीं करता है, उसकी पेमेंट का दावा नहीं करता, तब तक सभी तरफ खुशी ही खुशी छाई थी। देन सी व्हाट हैपेंड अहेड, आगे क्या होता है देखते हैं। 50,000 फ्लोरिन्स एक्सक्लेम्ड द काउंसिलर्स। जब टाउन हॉल में जाके या काउंसिलर में जाके या फिर से अपना वादा पूरा करने के लिए, कहने के लिए, याद करने के लिए जाता है यह पाइड पाइपर मेयर्स के सामने, तो क्या हो जाता है देखो, 50,000 फ्लोरिन्स एक्सक्लेम्ड द काउंसिलर। तो काउंसिलर ने अपना चकमा दिखा दिया कि क्या कहता है, 50,000, 50,000 फ्लोरिन्स सोने के सिक्के, नेवर, कभी नहीं। 1,000 फ्लोरिन्स एटलीस्ट, कम से कम आपको 1,000 सोने के सिक्के मिलेंगे। एंड क्राइड द पाइड पाइपर एंग्रीली, क्राइड पाइपर को पाइड पाइपर के ऊपर जोर से एंग्रीली से बोलता है कि चिल्लाता है, एक काफ़ी हो गए, आपने जितना काम किया है उसके लिए आपको तुम्हें 1,000 फ्लोरिन बास हो गए सोने के सिक्के। बट द मेयर ब्रोक इन, तो मेयर उसका प्रॉमिस तोड़ दिया। द रैट्स आर ऑल डेड नाउ एंड दे कैन नेवर कम बैक। तो वो क्या कहता है देखो, अब तुमने सभी रैट्स को नदी में जाके छोड़ा है तो वह मर गए हैं, तो कभी वापस नहीं आएंगे, है ना। सो बी ग्रेटफुल फॉर 50 फ्लोरिन्स और यू विल नॉट गेट इवन दैट। तो अगर तुम चाहो तो भी वह रैट्स अभी वापस नहीं आ सकते हैं। एंड जितना तुमने काम किया है तो इस काम के लिए इतना मुआवजा बस है कि 1,000 फ्लोरिन लेके आप बैठ जाओ, उसी पे सेटिस्फाइड हो जाओ, यही अच्छे है ऐसा समझ के बैठ जाओ, नहीं तो फिर उतने भी नहीं मिलेंगे। ऐसा कौन कहता है, मेयर कहता है। His eyes flashing with rage, the Pied Piper pointed a threatening finger at the mayor. तो पाइड पाइपर गुस्से में आ गया बहुत ही, एंड वह चमकते हुए रोज के साथ वह बहुत ही क्रोधित होकर उस मेयर की तरफ अपनी उंगली उठा के बोल देता है। क्या बोलता है देखो, यू विल बिटरली रिग्रेट एवर ब्रेकिंग योर प्रॉमिस, ही सेड। तो उसने क्या कहा, अगर तुम मेरा प्रॉमिस तोड़ते हो
तुम्हें इसका बहुत बड़ा पछतावा होगा। एंड वैनिश्ड, एंड गायब हो गया, चला गया। अ शिवर ऑफ फियर रैन थ्रू द काउंसिलर्स। एंड जैसे कि उस स्ट्रेंजर मैन के चले जाने के बाद वहाँ का भयभीत वातावरण भी थोड़ा सा फिनिश हो गया, चला गया। तो बट द मेयर शग्ड एंड सेड एक्साइटेडली, हाँ, सभी जो वातावरण फैला हुआ था काउंसिल में भयभीत फेयर का, वह भी उसके पीछे पीछे चला गया ऐसे समझ के। मेयर क्या कहता है, स्ट्रग्ड एंड सेड एक्साइटली, मेयर उचक जाता है एंड बोलता है बहुत ही उत्तेजित होके, खुश होके, वी हैव सेव्ड 50,000 फ्लोरिन्स, तो हमने 50,000 फ्लोरिन सोने के सिक्के बचा दिए, ऐसा कहता है, उस मेयर को लगता है। That night, freed from the nightmare of the rats, the citizens of Hamlin slept more soundly than ever. And वही एक रात अच्छी थी जो कि बहुत दिनों के बाद सुकून से सोने को मिली थी वहाँ के सिटीजन्स को। तो हैमलिन के लोग जो थे उस नाइट को बहुत ही अच्छे से, पहले से अच्छे आराम से सो गए थे। And when the strange sound of piping wafted through the streets at dawn, only the children heard it. Drawn as if by magic, they hurried out of their homes. Again the Pied Piper paced through the town. This time it was children of all sizes that flocked at his heels to the sound of his strange piping. एक रात चली गई, एक रात जब वो सोकर पूरे उठ गए तो दूसरी मॉर्निंग उन लोगों ने क्या देखा, तो देखो, तो दूसरी मॉर्निंग फिर से वही पाइड पाइपर फिर से वही उसी रास्ते पर अपना धुन बजाते हुए चला जा रहा था। एंड उसी के पीछे पीछे कौन जा रहे थे, आज तो सभी छोटे बच्चे उसके पीछे चले जा रहे थे, छोटे बड़े सब लोग बच्चे चले जा रहे थे। क्यों, तो उसने ऐसी धुन बजाई थी दूसरे दिन कि ओनली बच्चे ही सुन सके एंड बच्चे ही उस धुन में लीन होकर उसी के पीछे चले जाए। इस प्रकार का कुछ मैजिक उस धुन में था एंड वह यूज़ किसने किया था, पाइड पाइपर ने, बच्चों को बाहर निकालने के लिए। क्यों, तो यह उसको सज़ा देनी थी उन लोगों को, उन मेयर को, एंड वह गुस्से में यह सब कार्य कर रहा था। तो उसने वार्न भी किया था मेयर को कि तुम्हें इस बात की सज़ा ज़रूर मिलेगी, पछतावा ज़रूर होगा। तो देखिए आगे क्या करता है वह। तो उसने वह अपनी नई धुन बजा के चूहों की तरह बच्चों को निकाला दूसरे दिन सुबह में, एंड वह सभी बच्चों को लेकर के चला जाता है, उसके पीछे पीछे सभी बच्चे चले जाते हैं। बच्चे हिल्स पे चले जाते हैं अपने, तुरंत फास्ट उसी के पीछे भाग देते हैं, चले जाते हैं। And the long procession soon left the town and made its way through the wood and across the forest till it reached the foot of a huge mountain. And वह बच्चों को लेके कुछ समय हो जाने के बाद, लॉन्ग डिस्टेंस काट जाने के बाद चला जाता है। तो कहाँ पर जाता है, टाउन से दूर चले जाने के बाद वहाँ पे एक वुड का फॉरेस्ट में बड़ा सा माउंटेन बना हुआ था। ओके, वुड फॉरेस्ट में वह बच्चों को तो लेके चला गया थ्रू द फॉरेस्ट से, जंगल में से रास्ता निकाल के टाउन से दूर। एंड वहाँ पे कहाँ तक लेके जाता है उन्हें, एक बड़े माउंटेन की तरफ। व्हेन द पाइपर केम टू द डार्क रॉक ही प्लेड हिज पाइप इवन लाउडर स्टिल एंड अ ग्रेट डोर क्रैक्ड ओपन। एंड वहाँ पहुँच जाने के बाद पाइपर क्या करता है, और थोड़ी ज़ोर से धुन बजाता है, वह पाइप बजाता है। तो वह जो डोर है वहाँ के माउंटेन का क्रैक्ड होके ओपन हो जाता है। एंड डोर ओपन हो जाने के बाद बियॉन्ड लाई अ केव, उसके पीछे क्या थी देखते हैं, तो केव थी। केव मीन्स गुफा। इंट्रूप्ड द चिल्ड्रन बिहाइंड द पाइड पाइपर, एंड गुफा के पीछे बच्चे, सभी बच्चों की टोली जो है, पूरे के पूरा झुंड तो था जमाव बच्चों का, वह पाइड पाइपर के पीछे चला जाता है अंदर गुफा में। एंड व्हेन द लास्ट चाइल्ड हैड गॉन इनटू द डार्कनेस द डोर क्रिक्ड शट। एंड जब सबसे लास्ट वाला बच्चा भी पाइड पाइपर के पीछे पीछे उस गुफा में चला जाता है, तो लास्टली वह गुफा का डोर जो है बंद हो जाता है, पैक हो जाता है। अ ग्रेट लैंडस्लाइड कम डाउन द माउंटेन ब्लॉकिंग द एंट्रेंस टू द केव फॉर एवर। एंड वह जो बड़ा वाला गेट था, लैंडस्लाइड थी माउंटेन का डोर, वह एक बार से अगर वो ढक दिया, लग गया, तो किस प्रकार से लग गया, पूरी तरह से ब्लॉक हो गया हमेशा के लिए।
सदा के लिए। बाद में वह ओपन ही नहीं हुआ। ओनली वन लिटल लेम बॉय एस्केप्ड दिस फेट। एंड इस दुर्घटना से ओनली वन, एक लिटिल बॉय बचा था जो कि पंगु था, थोड़ा सा लंगड़ा था। एंड वही सभी बच्चों के पीछे पड़ा था, तो वह उनके पीछे अंदर नहीं जा सका, तो वही एक बच सका है जो पीछे में रह गया था। इस प्रकार से उस पाइड पाइपर ने अपने बच्चों को अपने साथ लेके चला है। It was he who told the anxious citizens searching for their children that what had happened, and no matter what the people did, the mountain never gave up its victims. तो उसके बाद क्या है, मेयर ने कितनी भी कोशिश की तो वह बच्चे वापस नहीं आ सके। लोग सिटीजन्स मेयर की तरफ कंप्लेन किए तो भी वह बच्चे नहीं आ सके। तो क्या हुआ, बहुत से क्रोधित हुए सिटीजन बच्चों को खोजने लगे, कहीं नहीं मिले। क्या हुआ, ऐसा कुछ हुआ था, इस पर कोई कुछ नहीं कर पा रहा था। तो सभी बच्चों को लेके उस पाइड पाइपर ने जादुई बांसुरी से अपने साथ लेके चला गया था। तो सभी पेरेंट्स ने अपने बच्चों को खो दिया था एंड अपने बच्चों की आवाज़ वह फिर से कभी नहीं सुन पाए। मेनी ईयर्स वेयर टू पास, बहुत साल चले गए थे बिफोर द मेरी वॉइसेस ऑफ अदर चिल्ड्रंस। मेरी वॉइस मीन्स एक प्रकार की खुशी की आवाज़ जिसे हम कहते हैं, वह चिल्ड्रन वुड रिंग थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ हामलिन। बच्चों की आवाज़ हामलिन के रास्ते पे सुन के बहुत साल हो गए थे, कभी उन्हें बच्चों की आवाज़ें नहीं सुनने मिली बाद में। बट द मेमोरी ऑफ द हार्श लेसन लिंगर्ड इन एवरीवन्स हार्ट एंड वॉज पास्ड डाउन फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन थ्रू द सेंचुरीज। बट यह जो घटना घटित हुई थी, वह घटना सभी के हृदय में वैसे के वैसे लगी रही, टिकी रही, जैसे कि जैसे बैठी रही सभी के हार्ट में। एंड वॉज पास्ड डाउन फ्रॉम पेरेंट्स के पास से चिल्ड्रन तो चले गए थे कई सालों तक, बाद में उन्हें मिले नहीं। तो इस प्रकार की सज़ा उन्होंने पाई, किसकी वजह से, मेयर की वजह से। क्यों, तो मेयर ने प्रॉमिस तोड़ा था। तो सच अ वे वी हैव टू टेक हियर मैसेज फ्रॉम दिस फेरी टेल कि बाबा अगर हमने किसी को प्रॉमिस किया है तो उसे बखूबी से निभाना चाहिए, बल्कि उसे तोड़ना नहीं चाहिए। अदरवाइज वी विल ऑल्सो गेट दिस टाइप ऑफ punishment. Okay, thank you students.